and I really hope you like it or you have some critical reflection about it. Let's watch. In the vast dry stretches of western Rajasthan that follows the trail of the Aravallis, with its thorns withstanding the heat and scarcity telling a story of years of rugged resilience and adaptation, flows the river Luni, a river that fostered a diverse landscape that once nourished pastures, sustained herds, and connected villages and relationships through its commons. But it is no longer like this. The river has not been one for the longest time, although it lives in memories, each one recalling its flow in their own way. सबसे पहले तो मैं देखी विचित्र चिंतन में देखिए पहले तो बरसात भी नहीं होती फिर सूखी रहती और चित्र में देखी चिंतन में देखी और बाद में एक बार हो रही बार ठंडार बोराई को वो उठा कर दिया और मेरा कैसी है हमने देखी बचपन में आया था उस समय कैसा रहता था मवेशी वाला समय में तो बहुत आराम से रहता है पूरी नदी पड़ी कोई बिल्कुल जगह में पार नहीं था गौचर ही तो बहुत भी पड़ी जो जगह एकदम पड़ी नदी के अंदर तरबूज खरबूजे होते थे और ये गन्ना भी बहुत होता था इस एरिया में लाडपुरा में अच्छा का जलता था 24 घंटे लाडपुरा गुड़ महसूस था एरिया के अंदर सर्दियों में पब्लिक यहाँ से गुड़ खाने के लिए लेकर जाती थी The Raikas and the Gujars, who have historically been predominantly agro-pastoralists, traversing through this landscape with their herds, have learned its rhythms and silences, where water seeps, what varied grasses grow, and when their herds will return to feed on it. What might initially seem like a utilitarian relationship is in truth one of deep familiarity, care, and adaptation, shaped by generations of living with the land rather than on it. After years of absence, the recent coming of the river in its full flow gave a glimmer of hope to the agro-pastoral communities who had to adjust to the circumstances around a dry riverbed. This is exactly what we sought out to document. The moments where fields flourished and the landscape thrived, the hope it revived among its people. Although we dived in with optimism, what we found on the field was much more complex. The coming of the Luni meant the refilling of wells, the return of moisture to the soil, and grasses beginning to replenish in the commons. Or so we thought. The absence of the river weighed heavily on the intimate relationship that sustained the agro-pastoral landscape. Once, a quiet balance bound farmers and herders where crop residue fed the herds, and in return, their manure breathed life back into the soil. It was a cycle of care, a pact that kept both land and the livelihoods alive. With time, however, this quiet balance gave way to mechanization and growing ambitions. पहले जैसा रुपये में चुमाना नहीं रही वो जान बचाने नहीं रही वो अपना भी नहीं रही वो कोई आदमी की नजर भी वो तो मुझे कह रहे हैं मुझे शिकायत हो रहा था पहले जो कहते
तुम्हारे सारी के कहते बनी चारा पड़ गया अब जो तेरा नहीं चारा उनको जमीन में कर दो खा दो The breakdown of this socio-ecological system was further exacerbated by intensification of technology and expansion of agricultural areas that have depleted, encroached and fenced upon what was once commonly shared. हमारा का तो असर हुए विदेशी वाले तो क्या आता है ना उनका तो सुबह में पानी हो गया नदी चल रही है तो उनको तो आराम नहीं है विदेशी वाले में कोई आराम नहीं है वो तो गड्ढा खोद ही रहे हैं गड्ढे में चारा नहीं होता क्या होता है As encroachment ate from one side, mining crept in from another. Infamously known as the Bajri Mafia, that began in the 1990s for commercial purposes, the sand mining industry scoured the dry river belt and its nearby grazing lands for sand. With time, it became a household activity, stripping the land bare and impacting the agro-pastoral way of life. ये है डॉक्टर की जमीन है और इसमें क्या है कि ये पूरे ये गड्ढा निकाल देगा ये पूरी ये जेसीबी वाला ये खोद खोद के कहीं भी तो रोड पे डाल के और कहीं भी घर पे लेके आते पटक देते पूरा ये गड्ढा खोदने का ये देख लो ये जमीन होगी करीब 10-12 बीघा जमीन है पूरी जमीन के अंदर ये गड्ढा खोद दिया Such issues have pushed the socially marginalized into deeper vulnerabilities. They have long lived at the edges of both land and opportunity, and even now, with the Loni flowing again, wells recharged and fields flourishing, their reality remains unchanged. The river has returned, but its flow has not reached them. लूनी नदी के आसपास आप चराने लेके जाते हैं? हाँ चराने के बैठ चराते बोलना चराता कहाँ चलाते हैं? ये चरा जगह ही नहीं है सब जगह नहीं। जगह ही नहीं है बदरी काटा खोलने की चराने की जगह नहीं है ये तारबंदी होगी तो रेंजर मैडम है तो बाद सीधे थाना में ठहरे डर तो लगा नहीं पुलिस मुश्किल होगी मगर वो मतलब बदरी काटा है जो मतलब बेचा गया रोगड़ा कर जाता है मैं फोन ठाट तो पानी पाता है तो ही बोले डर तो पानी नहीं पाऊंगा कल मेरे डूब जाए ठंडा कर दिया लो थिएटर में डूब गई पहले बच्चे डूब गए हमारा इसमें डूब गया हम तो गरीब लोग थे इतनी लूनी लंदी आई तो हमारे पास आ गई थोड़ा घर के पास आ गई हट गई थी हमने रात दिन 12-2 बजे हम बैठे रात काटी थी इनके उनका बच्चा लेके जाते रहे तो भी हमारे बकरे थे बदी तो देखे गए फिर 2-3 कड़ी दी तो कड़ी की मित्र लाख भी देखे गए तो हमारे परेशान है साढ़े रात की इतनी परवाह करते नहीं है लोग दुनिया आई थी देखने के लिए रात का तो हमने गणाई बोले उनको कि आप क्या करो क्या नहीं करो हमारे को क्या खोलने के लिए आया था हमारा पानी हमारे पास आ गया तो वो सुनवाई नहीं करी हमारा तो नंदी है नंदी में नंदी सुबह घरे पानी एक टंकर का 500 लीटर देवो तो एक टंकर पानी आता है पानी आता है तो गए बेची द्वारे मानने पानी पीवा ना तो ना गए बेचन करते Even efforts to increase grain cover have come at a cost. Prosopis juliflora, locally known as Vilaiti baboon, introduced through aerial seeding, has spread aggressively, replacing native trees, overtaking pastures, and altering cattle composition. सर तो है बड़े निगुनी मोहल्ले फायदा तो गए तो मैं कर सके हाँ ये बकरियां है तो बकरियां ने को चढ़ियों लाल ना देवे बकरियां को नहीं मारनी भाई ने आके के लोड़ा जारे के लोड़ा नोटिस मेरे ब्रेक मायने वाला साहब मध्य ये जी घूमोर है चलाने के काम आते हाँ दलाबा में काम है और कई काम में नहीं आ सकते क्यों दलाबा में नहीं काम है जैसे कोई काम की चीज़ नहीं है भेड़ बकरी गाय भैंस कोई नहीं खाता है को देखा तो इसको पॉइजन बढ़ जाता है मर जाओ But is hope limited by such precarity?
like to believe that it adapts. Hope in this landscape is complex, shaped as much by constraint as by aspiration. It is not purely optimistic, it is also practical, negotiated through circumstances, and responsive to the realities people live with. While the foreign baboon remains a menace, for the Kalbelias, it's their livelihood. सरपंच कहता है कि गौशाला में दो, ये पत्ते बांधो, कोयला बाटा बनाओ, पेट भरो, जब मैं बांध के पेट भराऊं, गौशाला में किया दे वो, केंद्र भाई के चालीं बचाऊं, पीछूं से बोला है, जब मैं कोयला बाटा बेच के, पत्ता गौशाला में उल्टा दान, मौके बंचत तो हो, कौन कोई आए आटे चुगना ही बंचत हो, हाँ, ठेकाने से पूरी हो जाती है, हाँ, जब मैं बचत जाता है, नमका भी देते हैं, हाँ, ये तुमने चल रही हो ये, हाँ, Even encroachment, which is often seen as greed, is someone's only hope for sustenance. बात करें, मजदूर मजदूरी करके पेट भरता है। कोई नहीं है, मेरे बाप एक तो मेरे को लोन मिलता है। देखो, सरगर्म लगान, 1 मिनट लगान, 1 मिनट लगान, सब ने जमीन देनी है, सबने सब कुछ है करने। पर माने साथिया फोन करने कोई जमीन नहीं है। Similarly, reduction of pasture that led to the abandoning of cattle is met with the emergence of gaushalas, funded with the prime motive of caring for the cattle. 6 साल हो गए ये बात हुए, 6 साल हो गए मेरे हर पूरे गाय का एक काम जानता हूँ। यहाँ तक कि मैं डॉक्टर को फोन भी नहीं करता हूँ, पूरा काम यही कर देता हूँ मैं। ये परमानेंट 6 साल हो गए यहाँ पर, पूरा काम कर देता हूँ। मेरे से होता नहीं है, उसके बाद में डॉक्टर को बोलना पड़ता है। और ये फोन पर ही डॉक्टर आ जाते हैं, हमारे गाँव के डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ से आ जाते हैं। While Rajasthan drylands are harsh and demanding, they are also rich and diverse. As the thorns continue to withstand its heat and scarcity, it reminds us that resilience has always taken root here. But it also makes us wonder, can this form of hope endure? As more people leave for better paying city jobs, stepping away from an agro-pastoral way of life, the locus of hope too begins to shift. Perhaps such are the circumstances of the Luni landscape, where hope is not just optimism, but adaptation to uncertainty. It bends, it travels, it reshapes itself with every new challenge. And even as ways of living change, the spirit of this land and its people continues to find new forms of survival within the available circumstances and opportunities. Here, hope does not disappear, it evolves. ये जो लूनी के साथ मेरा रिश्ता जो है वो नया भी है और पुराना भी है। आप लोगों को कईयों को पता होगा कि करीब 25 साल पहले मैंने यहाँ अध्ययन किया था और मेरा नाम पूर्णेंदु काबूली है। मैं रिसर्चर हूँ राजस्थान में और कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ भेड़ पालकों के साथ। तो मैंने करीबन 3 साल अध्ययन करा था, पैदल चला था पूरी नदी पे और डॉक्यूमेंट करा था पूरा सिस्टम को वहाँ पे। वो सिस्टम ये था कि नदी जो थी वो साल में 2-3 महीने के लिए आती थी और बहुत बड़ी गोचर थी नदी। खेती होती थी आसपास में, थोड़ी सी खेती होती थी, भेड़ों की खेती होती थी, फिर बारानी खेती होती थी और मवेशी जो है वो जानवर जो है
वो ऊपर से नीचे आते थे और वापस जाते थे। ये एक पूरा सिस्टम था। पश्चिमी राजस्थान में एक चीज हमें याद रखनी है, अगर अपन पुराने वक्त में जाके देखें तो जो ग्रोथ कंपोनेंट था ना हमारी इकोनॉमी का, वो लाइफ स्टॉक था, और जो सिक्योरिटी कंपोनेंट था, लो प्रोडक्टिव था, वो खेती थी। खेती पे कम भरोसा होता था, और अगर फसल नहीं आती थी फिर भी कोशिश ये होती कि चारा आए, और ज्यादातर हमारा देश जो है वो ऊंट, भेड़, बकरी, गाय के लिए पहचाना जाता था। तो पर करीबन 40 साल में ये जो प्रक्रिया थी ये पूरी उल्टी हो गई। हमारा डेवलपमेंट का सिस्टम जो ऐसे बना कि खेती पे हमने ज़्यादा जोर दी, और खेती की फैलाव हुई, ट्रैक्टरों से, ट्यूबवेलों से खूब फैलाव हुआ, और मवेशी के लिए जगह कम हो गई, जानवरों के लिए जगह कम हो गई, खेती बढ़ गई। आज अभी सिस्टम ये है कि खेती है पर खेती भी खतरे में है, पानी खारा हो रहा है, जानवरों के लिए चढ़ने की जगह कम है, और एक अलग किस्म की समस्या है। अभी जो 25 साल पहले जो मैंने अध्ययन किया था, उसके बाद में मैंने राजस्थान छोड़ दिया था, कई साल बैंगलोर में था, फिर मैं रिटायर हुआ तो मैंने बोला कि जाके फिर से देखते हैं इस देश को, जाके वापस आके देखते हैं, और वापस जाके गया। अब मैं ऊँट चकड़े में घूमने लायक नहीं रहा, तो मैंने एक घर किराए पे लिया, वहाँ रहा और गाड़ी में घूमा, देखा, और मैं देखा वहाँ तो मैंने तबाही देखी कि माइनिंग सब जगह हो रही है, खेती में खारापन है, नागौरी बैल तो गायब भी हो गया है। तो अंदर काफ़ी मुझे खेद हुआ, और मैंने करीबन 2.5-3 साल पहले सोचा कि मैं फिर से यहाँ पे जुड़ूंगा। इसलिए मैंने कहा कि पुरानी कहानी भी है और नई कहानी भी है। इस वक्त अब मेरे साथ एक नए यंग लोगों का ग्रुप है, जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लूनी के बारे में सोचें, काम करें। अभी 3 संस्थाएं हैं, FES, सेंटर फॉर सोशल इकोलॉजी, जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है, और कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्था, जिन्होंने ओरणों पे खूब काम करा है गए 25 साल से, जिन्हें इन साल ऑस्ट्रम अवार्ड भी मिला है, अमन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो हम एक बहुत ठोस रिसर्च करें पानी के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में, बायोडाइवर्सिटी। देखो, जड़ जो होती है ना, घास की आसानी से जाती नहीं है। तो जो हमने बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करी थी, इस एरिया में कम से कम 150 से 250 अलग अलग किस्म के घास हैं। एक गांव में आपको 60 से 40 किस्म की स्पीसीज मिलती हैं, दिखती नहीं है। इनका रीजनरेशन अपन जब करते हैं तो नॉर्मली लोग 4-5 धमासा कहते हैं कि यूँ कर ले, हम चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, डाइवर्सिटी देखें। जो पूरा ओपन वेल सिस्टम है यहाँ पे, हम सोच रहे हैं किस तरह से ओपन वेल्स को वापस लाया जाए, ट्यूब वेल्स पे कैसे हम डिपेंडेंसी कम कैसे करें, ये सोच रहे हैं। और एक लैंडस्केप लेवल पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एक एलिमेंट्स पे नहीं, मतलब पूरी लैंडस्केप देख रहे हैं, जिसमें अंगूर भी है, गोचर भी है, खेती भी है, बारानी खेती भी है, तालाब भी है, नदी भी है। इस लेवल पे हम सोचें। हम लोग को पता है माइनिंग हो रही है, पर अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा था कि अगर आप युद्ध कर रहे हो तो सीधा आप, एक प्लेट अगर है गर्म खाने की, तो आप सीधा अंदर हाथ नहीं डालोगे, आप आसपास से अपनी लड़ाई शुरू करोगे। तो हम सीधे नदी और खनन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके इर्द गिर्द जो है पूरा सिस्टम जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, गौशालाओं से बात कर रहे हैं। लोगों से कहते हैं कि भैया गाय की जगह कहाँ होती है, गाय की जगह घर में होती है, गौशाला में नहीं होती, उसका क्या तरीका है, वापस कैसे घर में ले जाए। तो इस तरह की धीरे धीरे हम बातें कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग में मैं चाहूँगा कि हम लोगों आपसे सुने, सिर्फ हम लोग बात नहीं करेंगे। मैं अलका जी से थोड़ी देर बोलूँगा कि हम प्रैक्टिकल वे में कम्युनिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ किस तरह से एंगेज कर रहे हैं वो बताएंगे। फिर शैलेंद्र जी से थोड़ी सी हम एक टिप्पणी मांगेंगे। थैंक यू परमेंद्र सर। बेसिकली हमने थोड़ा मूवी में भी देखा, थोड़ा सर ने पूरी जो लैंडस्केप है उसके बारे में थोड़ा बताया। तो जैसे कि हमने भी देखा कि 40 साल में लूनी नदी में पानी आया है। तो लूनी नदी एक पूरा जो लैंडस्केप है,
जो जाके गुजरात में ख़त्म होती है, कच्छ में जाके मिलती है। तो ये पूरी पुष्कर जगह है। पुष्कर की नाग पहाड़ी से स्टार्ट होके उसके पूरे जो लैंडस्केप है उस पर अभी जो शुरुआत है, उस पूरे ज़िले में हमने वहाँ ये पूरी जो परिस्थिति है उसको लेके जो अध्ययन किया गया है पिछले 40 साल 30 साल में, किस तरीके का वहाँ का चीज़ें में, वहाँ की जो परिस्थिति है उसमें बदलाव आया, वहाँ की खेती में बदलाव आया, पशुपालन में बदलाव आया, उसको लेके जो अध्ययन है, जिस अध्ययन को हमने अलग अलग एक्टर, चाहे वहाँ पे ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधिगण हैं, पंचायत के साथ ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल में जितने भी फंक्शनरीज हैं उनके साथ, जिला परिषद लेवल पे जो फंक्शनरीज हैं उनके साथ, वहाँ पे हमने पूरे अध्ययन को भी प्रस्तुत किया है। और एक ये आशा बंधी है ना, कि ये एक सोच बनी है कि पुराने चीज़ों को तो शायद हूबहू रेस्टोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो भी वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ की खेती है, उसको लेके हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने अलग अलग जो एक्टर हैं, सरकार हैं, जिनके साथ जो पूरी अपनी जो पूरी यात्रा है उसको शुरू कर रहे हैं कि जो खेती और पशुपालन है उस पर मजबूती कैसे मिले। तो हमारा सरकार के साथ जो एंगेजमेंट है, जिसपे राजस्थान पंचायती राज एक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो जहाँ काफ़ी अच्छे प्रोविजन है, 170(1) जो नियम है, जिसके तहत में नियम 1 में है कि आप चरगा विकास समिति का गठन कर सकते हैं। ये एक्ट में काफ़ी अच्छा प्रोविजन है, बट ये फंक्शनल स्तर पे देखें तो वो अभी ग्राउंड लेवल पे बहुत एक्टिव नहीं है। तो चरगा विकास समिति को ग्राम पंचायत स्तर पे हर राजस्व गांव में जो वार्ड पंच की अध्यक्षता में बनती है, उस चरगा विकास समिति को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं पंचायत लेवल पे, तो उस स्तर पे भी हम लोग प्रशिक्षण का काम और लोगों को मोबिलाइजेशन का काम ये कर रहे हैं। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के लिए एक बोर्ड का भी गठन हुआ है, बंजर भूमि एवं चरगा विकास बोर्ड। तो शायद मुझे लगता ये राजस्थान में एक यूनिक बोर्ड बना है और उनकी एक पूरी जो जिम्मेदारी उनके लिए तय की गई है, रोल तय की गई है कि जितने भी कॉमन्स है पंचायत स्तर पे, जितने भी कॉमन लैंड है, चाहे वो आंगोर हो, ओरन हो, चरगा भूमि हो, नदी हो, नाले हो, इन सबको वो कैसे उनकी प्लानिंग करे, उनका बेहतर प्रबंधन करे और उस पर पूरी जो गवर्नेंस सिस्टम को लाए। और उसी के तहत में पूरे तीनों लेयर पे, जिला परिषद स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे बंजर भूमि चरगा विकास समिति गठन करने का एक पूरी गाइडलाइन है जो 2018 में सर्कुलेट हुई है। उसको हम लोग उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, उनकी रिव्यू करके कि उनके जो एक्चुअल में जो रोल है उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये एक पूरी पहल है। साथ ही साथ कम्युनिटी के जो एंगेजमेंट है, जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है ना, जो चरगा विकास समिति के अगर एक तरह से देखें कि उनके जो नॉलेज हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उनके जो बायलॉज है, उसको हम लोग बेहतर ढंग से कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये एक पूरी पहल तीनों संस्थाएं मिलके वहाँ पे ये पूरी पहल को हम लोगों ने शुरुआत की है। ब्लॉक लेवल पे जो कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है कि पूरे लैंडस्केप लेवल पे कैसे एक फेडरेटिंग प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे अलग अलग जो नेटवर्क के माध्यम से कई सारे वहाँ कोलिशन हैं जो खेती पे, पशुपालन पे, इवन इंटाइटलमेंट के इशूज़ पे काम कर रहे हैं। तो स्टेट लेवल पे भी ये पूरे जो मुद्दे हैं, जो खेती पशुपालन के मुद्दे हैं, उसको लेके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये पूरी 40 गांव की अगर हम देखते हैं वहाँ पे पूरे अध्ययन में, बट एक गांव बहुत यूनिक गांव है वहाँ पे, अगर उसकी भी थोड़ी सी मैं केस यहाँ पे साझा करना चाहूँगी। ये अखेपुरा गांव है और पूरी लूनी नदी की जो कैचमेंट है वहाँ पे सरस्वती एक नदी है जो ये भी हम पढ़ते हैं इतिहास में कि वो विलुप्त हो चुकी है, बट उसके जो जहाँ पे वो मिलती है वहीं पे बॉर्डर में वो गाँव। और एक गाँव ऐसा है जो पूरे उस क्षेत्र में 20, 22, 25 साल से पूरा संघर्ष कर रहा है। एक भी उस गांव से जो माइनिंग है ना, माइनिंग जो सैंड माइनिंग है, एक भी बजरी जो है वहाँ से सैंड है वो उठा के नहीं ले जाना चाहता है। तो हमारी जो सोच है कि एक पूरा ये जो अखेपुरा गांव की जो सोच है या उनका जो इनिशिएटिव है कि पूरे जो लैंडस्केप के अंदर में एक गांव ऐसा है और जहाँ पे बहुत अच्छी खेती है, उनके कुओं में आज भी बहुत अच्छा पानी है,
तो वो पूरे जो 40 गांव या 50 गांव या पूरे जो हम एक लैंडस्केप देखते हैं, उनकी जो सोच है कि जो नदी है उस नदी को कैसे वो रिस्टोर करके रखे हुए हैं, वहाँ उनका जो खेती है, पशुपालन है, बाकी गाँव से काफ़ी बेहतर है। और आज भी वो गांव पूरा बहुत सारे जो एक्टर हैं उनकी मदद के माध्यम से, अकेले बहुत वो गांव अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अपने खेती पशुपालन को लेके। तो ये पूरी जो उस गांव की जो सोच है वो पूरे लैंडस्केप में उनका जो विजुअलाइजेशन है उसको लेके कैसे बढ़ सकते हैं और पूरी लैंडस्केप में कैसे वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ के पानी के जो सिस्टम है, कुओं में जो पानी का जलस्तर है, खेती है, पशुपालन है, ये कैसा बना रहे। तो ये एक अभी हम लोगों ने इस पे पिछले 1 साल से शुरुआत की है। थैंक यू। लूनी काफ़ी बड़ी नदी है वैसे, अजमेर से शुरू होती है और रणकच्छ तक जाती है। हम लोग अभी तक सिर्फ पहले 125 किलोमीटर तक का एरिया है, उसी में ही अभी आईएएच कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शैलेंद्र जी से, जो हमारे कई साल से मैं जो भी रिसर्च करता हूँ, मैं शैलेंद्र मेरा विक्टिम होता है इसके पीछे टेस्टिंग करता हूँ आइडियाज़ को। तो शैलेंद्र आपके थोड़े से थॉट्स। धन्यवाद। जैसे पूर्णेंदु जी ने कहा, मैं बेसिकली एज ए प्रैक्टिशनर क्या मैं लिख रहा हूँ इस इशू को, मैं थोड़ा उस पर और मेरा जो अनुभव समुदायों के साथ काम करने का है मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। क्योंकि एक तो जो बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स बनाए आपने उसके लिए धन्यवाद, और उसमें भी जो टाइमलाइन थी और जो चेंजेस आए उसको देखो तो 3 चीज़ों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक तो ड्राइवर्स ऑफ चेंज क्या है, क्या ऐसे कारण थे जिन्होंने वस्तु स्थिति को परिवर्तित किया और उसको समुदायों ने या स्टेक होल्डर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और क्या कंसिक्वेंसेस हैं जो शायद समुदायों को वापस सोचने के लिए मजबूर करें। तो 1-2 चीज़ें जो मेरे को समझ में आई, मैं ज़्यादा नहीं समझ दूँगा। एक तो आए संस्थाओं की, 1980 से लेके अभी तक की जो संस्थाओं की जो डायनामिक्स रही है, वो पहले जो संस्थाएं थी वो शायद नदी को, चरागाह को एक विशेष रूप से समझते थे जो स्थानीय समुदाय थे। और आज अगर देखें तो वो संस्थाएं नहीं हैं। उन संस्थाओं का स्पेस, मैं गलत हो सकता हूँ, करेक्ट कर देना, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ने ले लिया है और जिनका ओरिएंटेशन शायद नदी, चरागाह, उनकी संस्कृति थोड़ी अलग तरह की। तो ये हम परिवर्तन देख रहे हैं। इसका एक सिम्टोमेटिक अगर हम देखें जो रिस्पॉन्स हुआ है बदलते हुए, वो खेती की चाय, और वो आपने होप से शुरू किया, मैं कह रहा हूँ भय और इनसिक्योरिटी, जो मैंने ऑब्जर्व किया समुदायों के साथ काम करते हुए कि कॉमन्स का आपका इंस्टीट्यूशनल वीकनेस का जो कंसिक्वेंस एनक्रोचमेंट में हमने सदर राजस्थान में देखा बढ़ता जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वीक है, कोई कहने वाला नहीं है और होड़ मचती है एनक्रोचमेंट को रोकने की जगह एनक्रोचमेंट करने की। एक ट्रिगर्स अगर एक बार शुरू हो गया तो हर साल थोड़ी थोड़ी बाढ़ और बढ़ती जाएगी, और वो फिर आपका पेस्टलिज्म बैक साइड पे चला जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिर आपके यहाँ उस पर ग्राउंड वाटर की भी माइनिंग हुई, क्योंकि खेती आपको एक फसली की जगह 2 फसली करनी है, क्योंकि अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो और आपको एग्रीरियन एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया। बीच में आया है शायद माइनिंग, तो हमें शायद बिजनेस प्रपोजिशन जो नई, वो भी स्टेक होल्डर है एक तरीके के, वो उस पर मैं जा नहीं रहा था, मगर वो भी हुआ। और एक तरीके से वो जो हमारा पेस्टल सिस्टम था वो लगभग एक एज पे आ गया, और वो कंसीक्वेंस शायद हमने देखा वो सोचने के लिए लोगों को वापस मजबूर कर रहा है बाढ़, कि जो बाढ़ आपको हर कहता है पानी की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, पानी अपना रास्ता और अपनी जगह नहीं भूलता है, कहा जाता है। तो शायद वो अगर समुदायों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है तो क्या वापस रास्ता होगा। मैं सॉल्यूशन के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, पर ये सिर्फ लूनी की कहानी नहीं है। ये हमारे यहाँ जैसलमेर में मोहन जी बैठे हैं, खरका करके एक जगह है जहाँ से हमारे यहाँ की बेस्ट रेत जैसलमेर कैचमेंट में वो नदियों में ले जाती थी, और आज खरका में रेत बिल्कुल खत्म हो गई, और इकोलॉजिकल डिजास्टर है वो भी।
उसको भी शायद हमें एक नज़र डालने की जरूरत है। इसी तरीके से बनास राजसमंद, वो भी लगभग उसी तरह की स्थिति जो आपकी हुई, तो शायद ये कहानी इसकी नहीं है। और अरावली, पूरे अरावली हिल्स की, क्योंकि वो भी कट रहे हैं, अब वो पानी की डायनामिक्स को कैसे हाइड्रोलॉजी को प्रभावित करेंगे, शायद ये बहुत बड़ा समुदाय के साथ में प्रश्न। पर एक जो आपने बोला कि जो हमारे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में बात है कि लोग सोच रहे हैं इसको बदलने, स्टेटस क्यों नहीं मान रहे, वो जो इनर्शिया है वो टूट रहा है। और लोग, आपने कहा कि पूछते हैं, अब कोई अगर आता है चरागाह पे या अपनी ज़मीन पे, तो वो मुझे लग रहा है एक सिम्टोमेटिक है, लोग शायद इसको बदलना चाहते हैं। तरीके क्या होंगे वो मेरे ख्याल से सदन हमें बता सकता। मैं बस ये कंक्लूड करूँगा, दक्षिणी राजस्थान में एक चीज़ और हो रही, फॉरेस्ट पे जो एनक्रोचमेंट है, अब लोग, समुदाय उसको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। गोबुंदा करके एक जगह है जहाँ लोगों ने फॉरेस्ट पे एनक्रोचमेंट किए, नीलगाय खेत बर्बाद कर रही है, और पैंथर, उनके पहले जानवर ले जाते थे, अब वो मैनिटर्स। तो समुदाय में एक चर्चा चल रही है कि क्या जंगल पे एनक्रोचमेंट बढ़ाना, आपकी खेती की ज़मीन बढ़ाना, या जो भय या इनसिक्योरिटी की बात जो हम करते हैं, वो सॉल्यूशन है, या इसको हम बात करें और जो स्थिति है जंगल को जंगल रहने दें और खेती को खेती रहने दें। क्योंकि वैसे भी अब समुदाय को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खेती से उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो ये चर्चाएँ होंगी, और चर्चाएँ शायद फैसिलिटेशन हम सिविल सोसाइटी का हो सकता है, मगर जो चर्चाएँ हैं, जैसे आपने कहा माइनिंग और ये पकड़ेंगे, प्रपोजिशन बदल देंगे। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट होता है धुनी का, धुनी पे जो चर्चाएँ होती है वो शायद, वो मैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी कह रहा हूँ, वहाँ चर्चाएँ होती है जो समुदाय स्वयं चर्चाएँ करता है, और वो चर्चाएँ वो ये चाहते हैं कि किस तरीके से सबका हित है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं सोसाइटी बनी है जिसमें वो एक महाराष्ट्र में तुझा वाला बनता है साझा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो बैलेंस करने का काम है वो कैसे होगा, मुझे लग रहा है वो चर्चाएँ वापस संवाद समुदायों में वापस आरंभ करने की जरूरत है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल सिविल सोसाइटी और पॉलिटिशियंस का हो सकता है। थैंक यू। हम लोग चाहेंगे कि आज आप बात करें अपनी, एक अंग्रेजी में लफ्ज है टिपिंग पॉइंट, उसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन हो सकता है क्या? ब्रिटिश रेखांकित करना, हाँ, रेखांकित करना, मतलब टिपिंग पॉइंट, हाँ, पॉइंट, हाँ, एक लुढ़कने वाला सिचुएशन, एक सीमा, एक पॉइंट जिसके बाद में वो गले में उतरते नहीं कोई चीज, है ना? हद हो गई, वो सही है। हाँ, तो एक गले की पास हो गई, हद पार कर दी, हद पार गई। हाँ, तो ये कभी मुझे लग रहा है कि एक टिपिंग पॉइंट पे हम आ चुके हैं यहाँ पे इस इलाके में, और इस इलाके की कहानी और जगहों की भी है। कई चीजें, जब हमने काम शुरू करा था अमर में, हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, उसमें घूमते थे, और लोगों ने फिर शुरुआत पूछा ये तो माइनिंग वाले होंगे, और फिर वो मारुति ऑल्टो में माइनिंग वाला नहीं घूमता है, माइनिंग वाला घूमता है बोलेरो में। फिर उन्होंने रियलाइज करा कि माइनिंग वाले नहीं है, फिर धीरे धीरे समझने लगे कि क्या सवाल है, लोग घास के बारे में पूछ रहे हैं, कुएं के बारे में पूछ रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों ने साथ और आवाजें आती हैं, लोग कहते हैं कि सर आप करोगे तो हम साथ में जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डिसेंट नहीं है, पर क्या हो गया, दो चीजें हो गई हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ सेल्फिशनेस हो गया है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म हो गया है। डिफॉल्ट पे मैं ट्रैक्टर भर रहा हूँ और डाल रहा हूँ तो मुझे इंडिविजुअल थिंक, कलेक्टिव थिंकिंग कैसे लाई जा सकती है वो एक तरीका है। ऐसा नहीं कि कलेक्टिव थिंकिंग नहीं है, गौशाला है कलेक्टिव थिंकिंग से बनी, उसकी मोटिवेशन अलग हो, उसकी रैशनैलिटी अलग हो, पर वो कलेक्टिव थिंकिंग से बनी। तो कलेक्टिव थिंकिंग की पोटेंशियल तो है यहाँ पे, और कलेक्टिव एक्शन की भी पोटेंशियल है। कई गांव हैं जहाँ पे कलेक्टिव एक्शन भी हुआ है, पर मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी चीज ये लगती है मुझे, इस बात में मैं बंद करूंगा, मुझे कि हमारे पूरे एरिया में डीप लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया। मतलब कि ये जो हो रहा है ये हमारे काबू से बाहर है, ये हमारे साथ किया जा रहा है, हम करें या नहीं करें, वी आर सब्जेक्ट टू दिस, अपन पावरलेस हैं इस मामले में। एक सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई है कि हमारी खुद की डेस्टिनी हम खुद कर सकते हैं, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे लाया जाए, तो ये सब चीज़ें साथ में होनी पड़ेंगी। साइंटिफिक रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन,
गवर्नमेंट के साथ काम करना, कम्युनिटी के साथ काम करना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने करी भी है अलग अलग एरिया में। इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम ये शेयर करते हैं। एक शुरुआत है, ये कहानी की ख़त्म नहीं, कहानी की शुरुआत है। इसलिए आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और मैं चाहूँगा कि जो आप लोगों के थॉट्स हैं किसी के साथ आप जरूर, हाँ ज़रूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो सब कुछ सुना, मुझे तो बड़ा गर्व है कि सर ने जो वापस जो शुरू की है जिंदा करने की, जो आज जो ये चीज़ें जा चुकी है उसको वापस जिंदा करने की, क्योंकि वेदनिया का अर्थ तो आज बहुत कंप्लेक्ट है और जो चीज़ें आप कर रहे हो बहुत अच्छी है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कम्युनिटी को जोड़ना है सबको, धीरे धीरे कुछ छोटा सा एग्जाम्पल कहीं जैसे आप काम कर रहे हो तो उसमें छोटा सा एग्जाम्पल एक चीज़ को आप पब्लिक के सामने वो सही करके दिखा दोगे, पब्लिक ऑटोमेटिक जुड़ना चाहती है। आज के शिक्षित लोग हैं वो खुद ये चाहते हैं, अब वो ये चाहते हैं कि ये क्या मालूम कैसे काम करेंगे क्या नहीं है, और इसमें कौन है जब ये खनन विभाग वाले और सब पैसे वाले और गवर्नमेंट उनके सामने सब जनता पब्लिक ये जानती है कि हम क्यों आए, क्यों अड़चन में पड़े। सबको मालूम है कि ये नदियाँ बचनी चाहिए, लेकिन वो बचाने के लिए उनमें साहस, वो साहस आप लोग जिंदा कर सकते हैं। और मुझे गर्व है कि अगर जो चीज़ें जा चुकी है उसको वापस अपन ला भी सकते हैं, लेकिन उनको लाने के लिए सबके मन के अंदर एक चीज़, चाहे छोटा सा एग्जाम्पल आप छोटी सी नदी का एक चाहे 1 किलोमीटर का पार्ट आप बचा करके बीच गाँव के सामने रख लोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें अपने ऑटोमेटिक लोग वहाँ के गांव के, एक गांव के जो अक्षयपुरा नाम बताया क्या मैम, अक्षयपुरा में एक छोटा सा एग्जांपल आप तैयार कर दोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 गांव सर वो ऑटोमेटिक आपको दिन भर फोन करेंगे, सर हमारे गांव बताओ। ये राजस्थान का एक, आप तो मेरे से बुजुर्ग और पूरे मेरे हर गांव से जुड़े हुए हैं सर। तो मैंने क्या 10 साल से जब मैं ये कर रहा हूँ, जो चीज़ें होती है पब्लिक को जोड़ने के लिए, तो छोटा सा एग्जाम्पल करता हूँ पहले उसको कैसे जोड़ा जाए उस गांव को। तो वहाँ गांव में एक छोटी सी चीज़ पहल करता हूँ, उस पहल को पूरा मन दे करके, जिस चीज़ को करेंगे उसको पूरा अपना मन और तन दे करके अपन जीवित करेंगे तो ऑटोमेटिक लोग वहाँ के जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है। हम लोग सोच रहे हैं कि पूरी नदी पे तो काम करा नहीं जा सकता, बहुत बड़ा निवाला है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ओरण है वहाँ पे, उन पे अमन जी थोड़ा रेस्टोरेशन का काम करेंगे, कुछ अंगोर हैं उन पे करेंगे जो नाडियों पे हैं, और कुछ बाड़े हैं नदी के वहाँ पे ओपन वेल्स पे। तो कुछ हम सोच रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं ना कि अगर आप कुछ करके दिखाते हो तो लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मन में लोगों की शंका बहुत होती है कि ये किस लिए आया है, क्यों आया है। तो अभी उस स्टेज से आगे निकल गए हम लोग, पर हाँ ये जरूरी बात है कि कुछ तो करके दिखाना होगा। और आपने कहा कि तवा गरम है तो हाथ नहीं डालना चाहिए, तो संघर्ष नहीं करना अभी की स्ट्रैटेजी है कि कभी नहीं करना स्ट्रैटेजी है, जो माइनिंग माफिया नहीं कहेंगे हम तो, क्योंकि आई एम श्योर सब इलीगली होगा। नहीं, सब लीगल है, लीगल है, बिल्कुल लीगल है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स। तो उसके ऊपर नहीं करना एक स्ट्रैटेजी। अभी 3 साल में तो बिकॉज हमने कोशिश करी थी शुरू में, इमीडिएटली गून्स वर देयर, विद इन आवर्स गून्स वर देयर। तो मेरे ख्याल से अभी ये प्रोजेक्ट के मेरे ख्याल से 2 तरीके हैं, एक तो ये कि स्ट्रैटेजिकली अभी नहीं करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिटी कर सकती है, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, कम्युनिटी कर सकती है। और कुछ गांव ऑलरेडी हैं जहाँ पे लोगों ने रोक लगाई है, तो उसके साथ धीरे धीरे एंगेज कर सकते हैं। पर क्योंकि ये लीगल माइनिंग है, इलीगल माइनिंग नहीं है, और ये ठेके सब दिल्ली जयपुर से दिए गए, तो एक अलग लेवल पे एंगेज करना पड़ेगा। हम ये सोच रहे हैं अभी कि कुछ पोस्ट माइनिंग लैंडस्केप्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम शायद एंगेज कर सकते हैं कि माइनिंग जो खत्म हो गई वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम क्या हो सकता है।
ये हम सोच रहे इधर हैं। मैं तो थोड़ा जो जयसमल का जो शैलेंद्र जी का उसको बताऊंगा कि 91 में मैं उधर गया हूँ काम करने के लिए, और उसके कुछ समय बाद ही मैंने वहाँ देखा कि रेत जो निकल रही है उसका कुओं में पानी पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा माना नहीं। एक टेक्निकल एजेंसी थी, उसको भी पूछा तो वो कहे ये सही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, पर ये चर्चा हम करते रहे, और इसमें कुछ और सिविल सोसाइटियों के लोग हैं जैसे मन्ना राम जी डांगिया वकील, वो उसी एरिया के, तो उनके साथ में भी चर्चा हुई काफ़ी टाइम बाद में, और ये करते रहे। पर कुछ लोगों ने भी नहीं माना कि ऐसा हो रहा है। 2000 का जो ड्राउट पड़ा, 2006 तक जो ड्राउट रहा, उस समय भी हम चर्चा करते रहे लोगों से, तो वहाँ थोड़ा सा एक उबाल आया कि हाँ मानते हैं। और जब थोड़ा और आगे गए तो हमें जाते जाते अच्छा जो रेस्पॉन्स मिला 2009-10 से, तो काफ़ी सारी बड़ी मीटिंगें हुई, लोगों ने खुद ने पैसा इकट्ठा किया, बैठकें करते तो खाना भी वो उन्होंने किया, और ये तब जाके मतलब एक हुआ। और इस पूरे प्रोसेस में मैंने 91 से फ़ोटो खींचना ज़रूर शुरू कर दिया था, काफ़ी सारे फ़ोटो खींचे। तो ये जो खरका की जो पुलिया है, इसके नीचे पूरा साफ हो गया था, इसका जो नींव है वो भी खाली कर दी, उसका फ़ोटो भी खींचा। और 2006 में उसका फ्लड आया तो वो पानी गिर गया। उस समय ये कहा कि ये मिट्टी कट गई इसलिए कहा पानी गया। तो ये सारे फ़ोटो मैंने एविडेंस के तौर पे डाले। तो मैंने एक फ़ोटोग्राफी शुरू से कर रखी थी, तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले। तो उसके बाद में उसको एनजीटी में भी लेके गए, ग्रीन ट्रिब्यूनल में उसका, और उसका रोक हुआ। कम से कम 50 छलने टूटे। और एक और हुआ इस समय कि जितना मशीनरी आई तो लेबर बाहर हो गई, तो लेबर को भी हमने मोबिलाइज किया, क्योंकि अब आपको तो रोजगार भी नहीं मिल रहा है। पहले तो आपको ये लगता था कि रोजगार मिल रहा है, तो अब ये भी नहीं मिल रहा है, तो उनको भी मोबिलाइज किया, फिर वो भी साथ जुड़े। पहले एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो साथ जुड़ रहे थे, पर लेबर नहीं जुड़ रही थी, जो खास तौर से जो कर रहे थे। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहा जिसमें जुड़ के आज वहाँ पे बंद है, रोक है, पर चोरी छुपे ले जा रहे हैं। और कई सारे गांवों ने अपने सीमा में बंद करने के प्रयास किए हैं। तो ये एक वहाँ की सिचुएशन है। तो एक टाइम भी होता है कि किस क्राइसिस में लोगों को भी वो निरंतर, मतलब वो एक निरंतरता रहनी चाहिए किसी भी काम में कि भाई हमें ये करना है, तो ही जाके लोग जरूर किसी न किसी समय हमारे साथ जुड़ते हैं। मोहन जी, ये क्या है कि नहीं कॉपी चित्र वो क्या है, मुझे 2 फेज है। एक अभी मुझे लग रहा है एविडेंस बिल्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो बता रहे हैं रेत वाली बात, हमारे ये भी है, वो कुओं में पानी आ जाता है और पानी खारा हो जाता है 3-4 महीने में। रेत होती है तो पानी 8 महीने खारा नहीं होता, ठीक रहता है। तो इसको मैंने तो देखे हुए कुछ 15-20 कुएं ऐसे देखे, और मतलब क्वांटिटेटिव एविडेंस नहीं है मेरे पास, सिर्फ हाँ उस तरह की एविडेंस है। उसमें हमने एक और लिखा, कुछ कुओं के फोटो लिए थे। एक वाटर लेवल जब ऊंचा होता है तो पानी का एक निशान बन जाता है, और जब बहुत नीचे जाता है तो वहाँ एक बनता है। वो निशान निकाल के भी हमने एविडेंस दिया, उसका मेजर करके कि पहले पानी यहाँ रहता था, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले। वो निशान है, दिखते हैं, मतलब पत्थर का चुनाई है। कुछ जगह शायद वो रेत का होगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो निशान, और अभी कहाँ गया उसका मेजर करके कोई इतना नीचे तो गया है पानी। तो एक वो किया, और एक फिर उसका पूरा कंटूरिंग का वो सर्वे किया जीपीएस से, मतलब नदी का किनारा कहाँ है, फिर जो सबसे ज़्यादा गहरा कहाँ हुआ है, फिर ऊपर उसका किनारा क्या है। तो ये कंटूरिंग का किया, अपने जगदीश जी पुरोहित ने उसमें पूरी है, एक वो पूरा किया था। एक क्रॉप का पूरा डाटा लिया था कि पहले क्या क्या क्रॉप हो रही थी, कितने एरिया में हो रही थी, और इन 5-6 साल की बारिश नीचे जाने के बाद में कहाँ पे कम हुआ है। तो वो एक क्रॉप का डाटा भी लिया कि किस तरह से फसलें कौन कौन सी कम हुई है, ख़ास तौर से रबी की फसल और जायद की फसल तक का डाटा। तो ऐसे कुछ वो किए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो टेक्निकल इतना वो नहीं हूँ, पर कुछ साथियों ने, और लीगल एक सपोर्ट जो है वो लिया। ग्रीन ट्रिब्यूनल में MC मेहता
ने उन्होंने केस लिखा। बहुत सारा विरोधाभास हुआ कि नदी में मतलब शहर वालों के लिए विकल्प क्या रेती का, तो यार शहर वाले हमारे विकल्प पे क्या सोच रहे हैं, तो हमें फिर वहाँ कैसे सोचे, मतलब हमारा विकल्प सोचना है, हमारी लाइवलीहुड का सोचना है। तो ये भी काफ़ी सारे जो ग्रुप था डिस्कशन के लिए आते थे, तो उसमें तो इस कैचमेंट एरिया से 3 चीज़ें बहुत आती है उदयपुर में। सैंड आती थी, दूध उदयपुर में सबसे ज़्यादा जयसमंद से आता है, और पानी भी जयसमंद का उदयपुर में। तो ये अगर उदयपुर में अच्छा पानी रखना है तो भी कैचमेंट एरिया बहुत अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो वो भी कम पड़ेगा। तो उदयपुर में कुछ लोगों से ये भी चर्चा की है, तो कुछ लोग हैं जो आए हैं, जैसे जो सोशलिस्ट है। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा लूनी नदी बेसिन को सुन के। जमाना था कि लूनी बेसिन रिवर बेसिन पे काम होगा, रिवर बेसिन का एक रोल भी आया था, तो अभी वहाँ पर शुरुआत थोड़ी अच्छा लगा। तो मैं सर ये थोड़ा देख के कह रहा था कि जो विलायती बबूल है, इसकी चर्चा हम शायद वर्षों से करते आ रहे हैं, इसको हटाने को लेके, इसको वापस फिर अभी दो रहा है कि बुआई हुई तब एकदम ब्रॉडकास्टिंग हुआ, एकदम ग्रो हुआ, और कहते हैं कि रास्ते में ग्रीन कवर है तो सिर्फ अब विलायती बबूल से ग्रीन कवर बच रहा है और थोड़ा सा है ग्रीन कवर दिख रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी रिसेंटली एक CM की अध्यक्षता में शायद वो अभी विलायती बबूल उन्मूलन पे स्टेट में कार्यक्रम हुआ, और वो कह रहे हैं कि सब अब उसको अपरूटिंग करो। और सवाल ये है कि क्या मैं दोनों पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट ये है कि विलायती बबूल ने बहुत कंट्रीब्यूट किया राजस्थान के फील्डवुड के उसमें, पर इकोलॉजिकली देखें बहुत लॉस है, एलोपैथिक इम्पैक्ट है उसका नहीं होता था, ये वो सब चीज़ें हैं, और इन्वेसिव स्पीसीज है। तो मैं जब ये जाना था कि क्या थॉट्स है, जैसे मतलब क्या अनुभव है या विचार वहाँ उस तरह क्या राजस्थान में क्या कॉन्टेक्स्ट का हो सकता है, ये तो ये था। दूसरा ये था सर कि जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में ये स्टोरी था कि भाई आपका हर अल्टरनेट ईयर में ड्रॉट आएगा, अकाल आता था, अकाल राहत कार्यक्रम, लेकिन अभी जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ा है, क्या उस कारणों से नदी का फ्लो या लूनी नदियाँ या जो नदियाँ हैं वो बहने लगी, क्या ये रीजन तो नहीं है कि अभी कह रहे हैं लूनी नदी बहने लगी, क्या इस पर एक्सप्रेशन हो रहा है क्या? तो ये थोड़ा सा क्या इसका अनुभव रहा आपका, ये जानना चाह रहा था। आई की साइड के लिए आज आपने जैसे 2 चीज़ों के लिए कहा, एक तो विलायती बबूल वाला, तो जरूर राजस्थान सरकार ने एक इनिशिएटिव तो सोचा है, बिकॉज जो चारागाह जमीन है ना, अभी बहुत स्केल का तो मुझे नहीं पता कितना हो पाएगा, बट चारागाह जमीन में जो ग्रास की जो अच्छी स्पीसीज थी, ये धीरे धीरे मतलब खत्म हो रही है, और पशु उसके अंदर जाके चल नहीं सकते हैं। बट जब मीटिंग में दोनों तरीके से डिस्कशन हुआ, किसी की वो लाइवलीहुड भी है, फ्यूलवुड का भी वो है, बट कुछ एक तरह से जो टेक्निकली उन्होंने कुछ सजेशन भी किए हैं कि एटलीस्ट जहाँ पे चारागाह जमीन है, तो जो एनिमल है, स्मॉल एनिमल, उनको भी और बिग एनिमल दोनों के लिए चरने के लिए एक अच्छा मतलब जो ग्रास की जो स्पीसीज है उसको भी कैसे विलायती बबूल के साथ साथ लाया जाए, और उसको ये तो एक दिन में खत्म तो होगा नहीं, धीरे धीरे कैसे उस चीज़ को, बट अल्टरनेट के ऊपर भी चर्चा हुई थी कि वैसी जो लोकल स्पीसीज है जो पशु खाती है, पशु के लिए जो उपयोग में आती है, ऐसे स्पीसीज को वहाँ पे लगाया जाए। तो ये चीज़ें हो पाई थी, तो एक चर्चा तो ये। थैंक यू सर। मुझे लग रहा है कि आपकी जो मूवी हमने देखी उसमें ये लगता है कि पशुपालकों का जो लाइफ है उसको आपने जो दिखाने का कोशिश किया, मुझे लग रहा है कि इसको और नेशनल लेवल पे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लोगों ने व्याख्या रखी है, एक तो वो किस लेवल पे जी रहे हैं, उनके जो वास्तविक परिवार दिख रहे हैं, दूसरा जो गांव में वो जो आज से 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस धरती को उन्होंने देखा है, उस पीढ़ी ने देखा है। शायद इसके बाद लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे पता नहीं, लेकिन उन लोगों ने देखा है। तो एक तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया मूवी के कंटेंट बनाए, और जो कंटेंट है वो कोई काल्पनिक नहीं है, लोगों ने अपने मन की आवाज़ रखी है। दूसरा मेरा ये था कि सर आपने इतना जो रिसर्च किया है, यहाँ भी देख रहे हैं, हम सब संस्थाएं जो है एडवोकेसी लेवल पे बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं, हमेशा कम्युनिटी को फ्रंट पे रखती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो स्टडी है पशुपालकों के लिए,
जिनके पास ज़मीन भी नहीं है पशुओं को चराने के लिए। और कॉमर्स में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि रावली के बाद में जो आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उतना आसान नहीं है, क्योंकि सब जगह इंक्रोचमेंट है और एरिया भी इतना बड़ा लार्ज स्केल पे नहीं होगा कि गोचर के लिए उपलब्ध हो। तो क्या एडवोकेसी लेवल पे आप कुछ की रिसर्च जो है वो इफेक्ट कर पाएगी, सरकार में कुछ पहल हो रही है क्या, उसको जानना चाह रहे थे। क्योंकि बहुत सारे एक्ट निकालती है सरकार, तो कभी CFR निकालती है, कभी IFR निकालती है। अभी अलका जी मैडम कह रहे हैं चरागाह विकास समितियों का रजिस्ट्रेशन खुद कराई। पंचायत का अधिकार है कि गोचर भूमि को बचाए, लेकिन शायद जो आप व्याख्या कर रहे हैं वही स्थिति है, ना नदी नाले सुरक्षित है ना चरागाह सुरक्षित है। तो शायद आपकी जो ये स्टडी है, शायद जो पॉलिसी बनाते हैं उनको कुछ इफेक्ट कर पाए, ये हम उम्मीद रखेंगे सभी संस्था वाले। पहले तो मुझे कहना चाहिए कि हमारे जो दोनों यंग कलीग्स ने पिक्चर बनाया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने एक सिंपल चीज़ नहीं कही, एक गुड नहीं बताया, रियलिटी को एक तरीके से कॉम्प्लेक्स जो है वो दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा नहीं है। और जहाँ तक ये एडवोकेसी की सवाल है ना का सवाल है, मुझे लगता है कि बेसिक जो थिंकिंग है ना, हमारी जो थिंकिंग है दो चीज़ों से ड्रिवन है, एक तो खेती और दूसरा सेडेंटराइजेशन। सेडेंटराइजेशन को क्या कहेंगे हिंदी में? मतलब घूमने से रोकना। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मारवाड़ के लिए तो घूमना सांस है। अगर बाहर जाती जानवर आते हैं तो सांस होती है, मारवाड़ के तो ट्रैक्टर भी बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, सब कुछ जाता है, सब कुछ घूमता है। तो वो फंडामेंटल लेवल पर समझाना है कि भैया मूवमेंट नॉर्मल है यहाँ पे। ये थिंकिंग चेंज करानी है। अगर लाइफस्टाइल के बारे में थिंकिंग चेंज करानी है तो पॉलिसी पे एडवोकेसी हो सकती है स्पेसिफिक चीज़ों पे। मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक चीज़ों पे नहीं हो, फंडामेंटल लेवल पे इनका रीओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी जाके। पीछे से एक सवाल। So my question is just a little technical, थोड़ा technical question है। आपने जब mine closures के बारे में बात किया तो अभी I mean right now mine closures in India is very weak. So I wanted to ask, in the areas you've identified, have they already claimed that this is an abandoned/closed mine? कि अभी तक वो identification का process भी बाकी है, क्योंकि like people are saying that there's a huge sort of opportunity with just transition on closed mines. So just a technical question on what has the progress been in that Luni area on even just identifying and action towards it, because technically it's actually the lease owner's responsibility to fund mine closures. See, the problem is it is a messy situation. Much of the mining is legal and a good deal of it is illegal. So our information at the moment is anecdotal. मैं गांव में कहते हैं कि साहब आप माइनिंग ये बंद कर दी इन लोगों ने, चले गए, ये बोरी पिस्टल लेके चले गए. And there are some patches where you can see it's like a lunar landscape, you know, nothing. And for 2-3 years there's been no activity here. Now we have not yet reached a point where we have asked the panchayats as to whether there has been a closure. If there is officially mining stops, it is their responsibility to do some restoration activity. Whatever it is, पेड़ पौधा जो भी करना है, I don't think legally it is, we have information sufficiently clear. We have to find out, but we were trying to find a soft entry point where we can say, okay, this thing can be done. And we've talked to some panchayats where they said, okay, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, अपन यहाँ पे कुछ कर सकते हैं. पर वहाँ पे प्रॉब्लम बड़ा आ रहा है कि वहाँ पे फ्लडिंग बहुत सीरियस है. I mean, can you imagine craters करीबन आधा किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा और करीब 100-125 फीट गहरा. ये इस तरह के क्रेटर्स हैं वहाँ पे, तो पानी भर जाता है बहुत दबा के. तो हमें पता नहीं किस तरह से रेक्लेमेशन हो सकता है, किस तरह के रेस्टोरेशन हो सकता है और लीगल स्टेटस क्या है. तो ये पता करने वाली बात है, इंक्वायर करेंगे. रिवरेंट बायोडाइवर्सिटी को भी सर अच्छा से इसमें लीगल एस्पेक्ट में जा सकते हैं अपन इसको लेके, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्योंकि उसमें लिटिगेशन आ सकता है, मतलब लीगली, मतलब टेक्निकली रिटर्न बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि क्या था, क्या अभी लॉस हुआ है, तो हाँ, क्या क्रिटिकल. मेरे पास 2000 की डेटा है. बहुत बढ़िया सर, अच्छा रहेगा कि वहाँ पे उस टाइम पे बायोडाइवर्सिटी क्या थी, हर एक गाँव में क्या डेटा है, क्या स्पीसीज अवेलेबल, तो अपन जा सकते हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ये उस टाइम पे था और लॉस हो गया है, वो बायोडाइवर्सिटी लॉस दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं.
बस मेरे ख्याल से हमें बोला गया है कि अब आप बस कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमारे दो यंग कलीग्स को सचमुच में 3 महीने से जुड़े हैं। बहुत मार्मिक था, बहुत 3 महीने में इतनी ग्रोथ हुई और इतनी नॉलेज हुई। शिवम भी यहाँ है, हमारी टीम है। परिचय नहीं करवाया सर आपने, इनका परिचय नहीं करवाया। चलिए अपना अपना परिचय कर दीजिए, बंद कर देते हैं। कहाँ है? क्योंकि ऐसे यंग रिसर्चर मिलते कहाँ हैं? नहीं मिलते हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। शिवम थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, फिर अपन बंद कर देते हैं। मानसिकता आप बता, माफ करना मेरे से गलती। नहीं। हाय मेरा नाम शिवम है। मेरे को लूरी प्रोजेक्ट से जुड़े 1-1.5 साल हुआ है। इससे पहले मैं FES में काम कर रहा था और उससे पहले मैंने मास्टर्स फिनिश किया है अबाउट लास्ट ईयर। एंड उससे पहले मैं मध्य प्रदेश में एक देवास डिस्ट्रिक्ट है, उधर मैं काम कर रहा था। एंड आई थिंक रिसर्च में मैं थोड़ा अपने आप को बोलूँगा कि मैं एमेच्योर हूँ अभी भी। आई एम लाइक स्टिल लर्निंग क्या हो रहा है। लूनी लैंडस्केप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड टू स्टडी मैनी थिंग्स, कास्ट इंस्टीट्यूशंस, रिस्टोरेशन, इकोलॉजी एंड ऑल ऑफ इट। सो आई एम जस्ट लाइक, मैं बस देख रहा हूँ जैसे जैसे चीज़ें आ रही है कि मैं उसको कैसे एब्जॉर्ब करूँ, बिकॉज बहुत सारा कुछ एक साथ हो रहा है। आप देख रहे हो बारिश हो रही है, कभी लाइक बारिश केओस की, लाइक कुछ हो रहा है उधर हो रहा है। हमने ट्राइंग टू मेक सेंस कि हाउ यू थिंक कि आई वुड इवन कॉम्प्रिहेंड टू राइट समथिंग अबाउट इट, आई हैव टू लुक और मेक अ डिज़ाइन एज सच। So yeah, but it's like really fun when it's the field is really interesting. So yeah, really looking forward. Hello everyone, I am Archita. I am from Assam. और मेरा हाल ही में मास्टर्स खत्म हुआ है। मैंने पर्यावरण और विकास में मास्टर्स किया है एंड थोड़ा फील्ड एक्सपीरियंस रहा है मास्टर्स के दौरान ही। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रियली गिवन अ प्लेटफॉर्म टू hone your own research skills and communication, and just like Shivam said, it's a very interesting landscape with diverse elements, and similarly I'm also trying to find my niche, and yeah, I'm really looking forward to working together with the team. Thank you. नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रीत है। मैंने भी अभी हाल ही में अपनी मास्टर्स खत्म करी है IIT गांधीनगर से, और मैंने भी एज अ रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन किया है। समथिंग जो मेरे को अभी तक स्टक है, समथिंग सर सेड इन द वेरी फॉर्मर डेज जब मैंने ज्वाइन किया था, वाज दैट दिस प्रोजेक्ट विल टीच यू हाउ टू सी थिंग्स। सो मैंने इससे पहले डांग में काम किया है, डांग गुजरात में, साउथ ऑफ गुजरात में। तो वहाँ पर विच आई फील वाज दैट मैंने उसको इतना जस्टिस नहीं दे पाई जितना मेरे को देना चाहिए था, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो वहाँ पे एक विलेज सेटअप में होती है। तो यहाँ पे आकर विद द सर्स गाइडेंस, विद ऑर्गेनाइजेशन, विद सच ब्रिलियंट पीपल, आई एम लर्निंग दैट। सो या, थैंक यू।